हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के साथ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा सेल को किसने डिस्कवर किया है, सेल और कैसे डिस्कवर हुआ है ये। इसके अलावा हमने और भी चीज़ें देखी थी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनेल्स, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनेल्स, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। आज हम जो और सेल ऑर्गेनेल्स हैं सेल में प्रेजेंट उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है सेल में, दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस वी कैन से, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, plastids, mitochondria, ribosomes. We will discuss them one by one. So before that, here I want to explain something. What is nucleus? Nucleus is the main part of the cell, and inside the nucleus the chromosomes are present, and these chromosomes are inside the nucleus. These chromosomes are present. These chromosome comprises of DNA and it comprises of gene. So in this diagram you can see that this is a cell, and inside the cell nucleus is present. In the nucleus there are a number of chromosomes present. In each chromosome, what happens, there is a large strand of DNA, and the segment of DNA is known as a gene. A particular DNA segment is known as a gene, and there are many genes present in everyone. So what is nucleus? Now we will discuss the cell organelles one by one, starting from nucleus. What is nucleus? Nucleus is present in all the eukaryotic cell. सारे ही यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. इट कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल ओनली व्हेन द सेल आर डिवाइडिंग. जो क्रोमोसोम होगा इसमें वो हमें कब दिखेगा? वो क्रोमोसोम सिर्फ जब ही दिखेगा जब सेल डिवाइड हो रहा होगा, बाकी पूरे टाइम क्रोमोसोम नहीं विजिबल होगा. दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. जो क्रोमोसोम होगा वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होगा. न्यूक्लियस हैज अ मेन फंक्शन इन गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल. स्ट्रक्चर और फंक्शन को गवर्न करेगा वो सेल के. इट ऑल्सो गवर्न द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल. सेल को कब डिवाइड करना है और कब डिवाइड नहीं करना है. नाउ व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? Endoplasmic reticulum is a large network of channel arising from the outermost nuclear membrane. In the diagram you can see that this was the diagram for endoplasmic reticulum. Here you can see that this is the nucleus, and what happens, the endoplasmic reticulum arises from the outermost layer of the nucleus. And what the outermost layer of the nucleus, and what happens in there are two types of endoplasmic reticulum, RER and SER. RER is rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, where you can see that the ribosomes are attached. The small dots which are showing, they are ribosomes. They attached on the endoplasmic reticulum. It is known as rough endoplasmic reticulum. And in smooth endoplasmic reticulum, the SER is smooth endoplasmic reticulum, where no ribosomes are attached. The ribosomes gives the site for the synthesis of protein, and on smooth endoplasmic reticulum, fats and other liquids are synthesized. Here it is written that RER gives the site for the synthesis in the ribosomes. राइबोसोम्स में सिंथेसिस होता है. अब किसका सिंथेसिस होता है? प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है. साइट फॉर, दे आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. एंड इन एसईआर, प्रोटीन सिंथेसिस. And in SER, it is the site for the synthesis of fats and liquid. It also gives the framework for support of some biochemical activities. Also, SER helps in the detoxifying of some poisons and drugs. Now we will continue with Golgi apparatus or Golgi body. It is mostly connected to endoplasmic reticulum, which is here stated as ER, and it consists of a system of membrane bounded vesicle arranged in a stack called cisternae. These are the cisternae present. This is cisternae, and it has two phase. Golgi apparatus has two phase, the cis phase
and the trans phase. The outer phase is known as the trans phase and the inner phase is known as the cis phase. The main function of Golgi apparatus is in packaging and dispackaging things outside of the cell. They also store and modify certain substance. They are involved in the making of lysosomes. What are lysosomes? So lysosomes are the पार्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल. जो वेस्ट होगा वो डिस्पोज करने के यूज में आता है लाइसोसोम. इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच हेल्प इन इट्स क्लीनिंग. इसमें क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि हेल्प करेंगे किसमें, क्लीनिंग में. दे आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन एग्जाम्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज why lysosomes are used as a suicidal bag or why lysosomes are known as a suicidal bag. So answer is because when the cell get damaged, the lysosome burst and the enzyme present in the lysosome digests their own cell. जो एंजाइम प्रेजेंट होंगी लाइसोसोम्स में वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेंगी. लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड filled with digestive enzyme. They are derived from ER. जैसा कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनाए जाते हैं. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस के थ्रू बनते हैं. और क्या होता है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम फिल्ड होती हैं और ये एंजाइम हेल्प करती हैं जब सेल बर्स्ट हो गया तो उसको डाइजेस्ट करने में. Now what is mitochondria? Mitochondria are known as the powerhouse of the cell. जितनी भी एनर्जी मिलती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू मिलती है because mitochondria they help in the synthesis of ATP. ATP is adenosine triphosphate. ATP is the energy currency of the cell and they store energy in their bonds. ATP में जो bond होते हैं उनमें energy होती है. Mitochondria have two membrane. The outer membrane, ये आप देख सकते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की. इसमें लेबल भी किया हुआ है. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. द इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड्स. आप देख रहे हैं कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है. इनर मेम्ब्रेन में ये क्या है, ये सारे बहुत सारे फोल्ड्स बने हुए हैं इसमें. और जो फोल्ड्स हैं उनमें अंदर क्या है कि एक फ्लूइड भरा हुआ है, मैट्रिक्स है. दिस इज नोन एज मैट्रिक्स. जो अंदर इसके फ्लूइड भरा हुआ है उसको मैट्रिक्स बोला है. So the production of ATP takes place only in the inner membrane. जो ATP बनेगा वो inner membrane में बनेगा. और they have their own DNA and they produce some of their own proteins. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होगा और ये अपने खुद के कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे. Now what are plastids? They are only present in plant cell. Plastids हैं जो ये only present किस में present होंगे? They are only present in plants. ANTS. They only present in plant cell. And there are two types of plastid. In animal cell there is no plastid. There are two type of plastid, chromoplast and leucoplast. Here chromoplast is colored and leucoplast is white. In this diagram there are many types of plastids shown here. This is chromoplast and this is leucoplast. Chromoplast होती है जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट होता है. इसके क्रोमोप्लास्ट के टाइप होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट है. जो सब मेन होता है जो प्लास्टिड होता है वो प्रोटोप्लास्टिड होती है. उससे ड्राइव्ड हुआ एटियोप्लास्ट और फिर एटियोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के टाइप्स हुए. क्या क्रोमोप्लास्ट का टाइप है क्लोरोप्लास्ट. इट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल. जो क्रोमोप्लास्ट होगी वो कलर्ड पिगमेंट कैरी करेगी. इट मे बी ऑफ सम अदर कलर, ऑरेंज कलर की भी हो सकती है क्रोमोप्लास्ट. लेकिन अगर वो ग्रीन कलर की है तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे. लेकिन अगर येलो और ऑरेंज कलर की है तो उनके कुछ अलग नाम होंगे जैसे कैरेटनॉइड्स और ये सारी चीजें होती हैं. दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. अब जो प्लास्टिड क्लोरोफिल इज हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस. हमने पिछले लेक्चर में जो क्लोरोफिल वाला पढ़ा था प्लांट्स में उसमें हमने देखा था कि क्लोरोफिल कैसे हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में. जो ल्यूकोप्लास्ट होगा वो वाइट होगा. दे आर वाइट इन कलर एंड दे यूज टू स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन. The leucoplasts are also of three type: amyloplast, elioplast and proteinoplast. So they help in the storage of starch, oil and protein. Proteinoplast store
protein, elaioplast stores oil, and amyloplast store starch. They have their own DNA and ribosomes. इनके पास भी अपना खुद का DNA होगा और ribosomes होंगे. Now what are vacuoles? Vacuoles are present in both in plant cell and animal cell. But in plant cell the vacuoles are large. They are the storeroom for the various substance in the cell. जैसे हमारे घरों में स्टोर रूम होता है, ऐसे ही प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी स्टोर हाउस टाइप का होता है, जो कि बहुत सारे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको स्टोर करने के काम में आता है, उनको वैक्यूल्स बोलते हैं. इन प्लांट सेल द वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल. उसके अंदर बहुत सारा सेल सैप भरा हुआ होता है वैक्यूल के अंदर प्लांट्स में, और सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, फूड वैक्यूल्स हेल्प इन डाइजेशन. तो वैक्यूल्स का भी अलग अलग फंक्शन होता है. जैसे अमीबा में इसमें ये हेल्प करता है डाइजेशन में, लेकिन प्लांट्स में इसमें सेल सैप भरा होता है तो ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. दे ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्पोजिंग द वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल. ये सेल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी डिस्पोज करने के यूज में आता है. वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है कुछ वेस्ट मटेरियल भी. नाउ व्हाट आर प्रोकैरियोट्स. इसमें एक स्लाइड मैंने डाल दिया है प्रोकैरियोट्स का, कुछ चीजें जो रह गई थी लास्ट स्लाइड में बताने से, लास्ट वीडियो में बताने से. द सेल विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. इनमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन नहीं होता है, प्रॉपरली न्यूक्लियस नहीं होगा प्रॉपर जैसे यूकैरियोट्स में होता है. तो द रीजन वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट. अब यूकैरियोट्स में तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं है वेल डिफाइंड. तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है. जिस जगह जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं. इन सच ऑर्गेनिज्म मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. तो जो क्या होता है, इनमें जो लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सारे नहीं प्रेजेंट होते हैं. बहुत किसी में कुछ प्रेजेंट होगा, किसी में कुछ प्रेजेंट होगा. एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं बैक्टीरिया. आगे डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल को, दोनों को. हियर इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल. सो इन दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल. So what happen in prokaryotic cell? They are generally smaller. They has the size of 1 to 10. It is not centimeter, it is micrometer. It is micrometer, it is not centimeter. It is micrometer. They are generally small in the size 1 to 10 micrometer, while eukaryotic cell are generally large in size 1 to 100 micrometer. They are 10 to 100 micrometer or 1 to 100 micrometer. Prokaryotic cell have well-defined nucleus region. No. The well-defined nucleus region is absent in the prokaryotic cell. So the prokaryotic cell do not have well-defined nucleus region, while the eukaryotic cell the well-defined nucleus region is present. Here in prokaryotic cell only one chromosome is present, and in eukaryotic cell more than one chromosome is present. Chromosome in prokaryotic cell is circular, while the chromosome in eukaryotic cell is linear. Circular is in the form of circle and linear in the form of line. This type of chromosomes are present in this form. Example, all the bacteria are prokaryotes. Example is this diagram बना हुआ है बैक्टीरिया का. एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, और यूकैरियोटिक में हो जाएगा आपका फंजाई, डॉग्स, कुछ भी आ जाएगा जो भी आप देखते हैं, जो आपको नेकेड आइज से आप देखते हैं. प्लांट्स भी के भी यूकैरियोटिक सेल ही प्रेजेंट होता है प्लांट्स में. लिविंग एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़ के बाकी जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं जिनको प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, उसमें सब में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा. Now what are viruses? Are virus living or non-living? ये अभी तक ऐसे ही चल रहा है, लिविंग नॉन लिविंग, क्या किस में क्लासीफाई करें, इस तरीके से वायरस के बारे में सोचते हैं. तो दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन वायरस में प्रेजेंट नहीं होती है, किसी भी तरीके की सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. इसीलिए ये क्या करते हैं, लाइफ का कोई भी कैरेक्टर शो नहीं करते हैं. सो वायरस आर नॉन लिविंग
till they are out of our body, and when they reaches our body or when they reaches any host body, जैसे ही किसी के अंदर जाते हैं तो वो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगते हैं, क्योंकि वो उस होस्ट के मेम्ब्रेन को ही यूटिलाइज करते हैं. सो दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, बिकॉज द वायरस दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, they are not classified as a living. They are non-living till they are outside of the host, and if they enter the host they are living. What are animal cell and plant cell? ये डायग्रामेटिकली भी मैं आपको बताऊंगी, पर मैं मेन कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ. जो है एनिमल सेल में क्या होगा, जो वैक्यूल्स होंगे वो स्मॉल साइज के होंगे. इन एनिमल सेल द वैक्यूल्स आर ऑफ स्मॉल साइज. छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे. नंबर ऑफ वैक्यूल्स लार्ज होगा बट वैक्यूल्स शॉर्ट होंगे. और इन प्लांट सेल लार्ज साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. मे बी द नंबर इज लेस बट द साइज ऑफ वैक्यूल इज लार्ज. इन एनिमल सेल में क्या होगा, प्लास्टिड एब्सेंट होंगी. एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होंगी, जबकि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होंगी, क्योंकि इन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए इनकी जरूरत है. एनिमल सेल में क्या होगा, सेल वॉल नहीं होगी. एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही स्टार्टिंग होगी, नो सेल वॉल इज प्रेजेंट. जबकि प्लांट सेल में प्लांट सेल को सपोर्ट करने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी. एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. सो द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन plant cell while it is absent in animal cell. In animal cell centrioles are present. ये centrioles होते हैं, ये animal cell में होते हैं, लेकिन ये plant cell में नहीं होते हैं. plant cell में centriole नहीं present होते हैं. डायग्रामेटिकली देखते हैं. ये वाला डायग्राम है जो फर्स्ट वाला, ये एनिमल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड वाला डायग्राम है वो प्लांट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये एनिमल सेल और ये प्लांट सेल आप क्लियरली देख सकते हैं. इसमें जो अभी मैंने कुछ ऑर्गन्स और वो सब ऑर्गेनल्स बताए थे वो किस में प्रेजेंट हैं. इसमें आप देख रहे हैं डायरेक्ट स्टार्टिंग हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ भी दिया हुआ है ये सेल मेम्ब्रेन. और इसमें जहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसमें सेल मेम्ब्रेन वॉज सेकेंड टर्म. ये वाला है जो सेल मेम्ब्रेन है, और जो बाहर वाला है वो सेल वॉल है. जो आउटसाइड है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर, वो सेल वॉल है. अब जो मेजर डिफरेंस है, जो क्लोरोप्लास्ट है, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा. एनिमल सेल में कहीं भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा. इसमें क्या होगा, सेंट्रियोल होगा. सेंट्रियोल प्लांट सेल में कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा. जबकि आप ये सारे देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे जो होंगे, ये आपका जो गोल्जी अपैरेटस, वैक्यूल्स, ये सब प्रेजेंट होंगे इसमें भी. ये देखिए, आप देख सकते हैं राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस, ये सब इसमें भी प्रेजेंट होंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों तरीके की होंगी, रफ एंड स्मूथ. रफ में होगा राइजोसोम्स अटैच होंगे, और स्मूथ में राइजोसोम्स नहीं होंगे. ये स्मूथ वाला है तो इसमें राइजोसोम्स नहीं होंगे. बाकी वैक्यूल्स होंगे वो स्मॉलर साइज के होंगे. आप देख सकते हैं इसमें इतने ही बड़े हैं, और इसमें वैक्यूल है तो ये काफ़ी बड़े साइज का है. ये देखिए आप, पूरा काफ़ी एरिया कवर कर रहा है, पर है इसमें एक ही वैक्यूल प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही प्रेजेंट होंगे. इसमें पैरोक्सीसोम्स भी प्रेजेंट होंगे. इसमें सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होंगे. और साइटोप्लाज्म भी दोनों में ही प्रेजेंट होगा. इट इज़ कॉमन फॉर बोथ साइटोप्लाज्म, दोनों के लिए ही कॉमन रहेगा. राइजोसोम्स प्रेजेंट होंगे, दोनों में ही होंगे. इसमें भी आप देख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होंगे. और अमाइलोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी. ये बेसिक डिफरेंस है. डायग्राम भी बनाने आते हैं आप इसको. ये सबसे जो इजी तरीके से बने हुए डायग्राम थे, इसलिए मैंने ये वाले लिए. आप जो बुक्स में बने होते हैं वो भी बना सकते हैं. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए. और आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.
इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है, और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है, और इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन.